ٹھیک ہے سر. پیش کریں گے تو اس کے بعد پیش ہوگا. وہ اجازت دیں گے پھر پیش ہوگا. وہ پیش کریں گے پھر ہاؤس سے اجازت لیں گے. ہاؤس سے اجازت لیں گے. جی سردار صاحب. شروع سے ایک منٹ. ہاں کس چیز کی؟ ایک کاغذ آپ کو دیں گے. سردار صاحب لوگ ساری زندگی ہاؤس میں گزاری. قرارداد 10 آدمی پیش کرتے ہیں. ایک آدمی پڑھ کے پروسیجر پڑھ آپ کے کہنے پر وہاں سے بات نہ کریں. وہاں ایک منٹ سردار صاحب. طارق مجید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پڑھ لیں. پہلے ہاؤس سے اجازت لیں. میں سردار عبد الرحمان کھیتران تحریک پیش کرتا ہوں کہ ذیل قرارداد کو پیش کرنے کے بابت اجازت دی جائے. تحریک پیش ہوئی. آیا تحریک منظور کی جائے؟ جو اس کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں. جی صحیح گنے. دوبارہ گنے. پھر گن لیں. تحریک کو ناظرین اس وقت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ ناراض اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آج پیش کی جانی ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. آیا جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان برقرار رہیں گے یا نہیں، یہ فیصلہ ہونا ہے. تحریک عدم اعتماد پیش کی جانی ہے. آپ کو بتائیں کہ ناراض اراکین کی جانب سے 33 ووٹ یہاں پہ جو ہاؤس کی. لہذا مورکی میں سے کوئی ایک محرک وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد نمبر 115 پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرگاہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. یہ کہ وزیر اعلیٰ جام کمال نے اقتدار پر برجمان ہو کر خود کو عقل کل سمجھ کر صوبے کے تمام اہم معاملات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلایا ہے، جس سے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. جبکہ اس بارے میں انہیں کابینہ اراکین وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی. علاوہ ازیں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے وفاقی حکومت کے ساتھ آئینی اور بنیادی حقوق کے مسائل پر انتہائی غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے، جس میں صوبہ گیس، بجلی، پانی اور شدید معاشی بحران کا حامل ہوا. نیز اس وقت صوبے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، جن میں بیوروکریٹس، ڈاکٹرز، طلباء اور زمیندار، حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وزیر اعلیٰ قائد ایوان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایوان کے اکثریت کے حامل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ اور قائد ایوان منتخب کیا جائے.
وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد نمبر 115 پیش ہوئی. کیا مورکین وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد نمبر 115 کی فیزیبلٹی پہ وضاحت فرمائیں گے؟ جو معزز اراکین اسمبلی قرارداد نمبر 115 کی حمایت اور مخالف میں بحث لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام سیکرٹری اسمبلی کو بھیج دیں. جی مورکین میں سے سردار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اصولاً تو فیصلہ ہو چکا. یہ مقدس ایوان ہے. یہ کچھ آپ کا موبائل بج رہا ہے میرا خیال ہے. اگر کسی کا موبائل آن ہے پلیز بند کر دیں. جناب اسپیکر صاحب یہ 65 کا ایوان ہے. جس طریقے سے جام صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام شخصیت ہیں. یہ اپنے قبیلے کے نواب ہیں, سردار ہیں. جب نواب صاحب ہنس رہا ہے وہ میرا خیال ہے قاعدہ پھاڑنے والی بات آپ کو یاد آ گئی. تو جب ان کو قائد ایوان منتخب کیا گیا اس وقت اکثریت کے بلبوتے پر, آج بھی اکثریت کے بلبوتے پر یہ قرارداد آ گئی ہے اور اس ایوان نے فیصلہ کر دیا ہے. گو کہ ہمارے 5 آدمی مسنگ پرسن میں آ گئے ہیں, 5 پارلیمنٹیرین. خیر وہ تو ہم اس کے لیے تو جو بھی قانون سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا. کسی کا گلا دبا کے کوئی زبردستی اقتدار پہ, میرا خیال ہے یہ بلوچستان کی روایت نہیں ہے. آپ مت کرو نا, تم کو پتہ ہے, میں جانتا ہوں تم کو. یہ بلوچستان کی روایت نہیں ہے کہ کسی کو آپ مسنگ کریں, اغوا کریں اور اس کو, اس ایوان کو, اس کے تقدس کو آپ پامال کریں. یہ ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ. ہم گزارش کر رہے ہیں اس میڈیا کے ذریعے, اس جناب اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے, کہ مہربانی کر کے جو ہمارے مسنگ ہیں ان کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے. نہیں تو یہ ایوان, یہ بلوچستان, یہ سب احتجاج میں جائے گا. ہم اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے. ہمارے لیے ہر ادارہ قابل احترام ہے. باقی ایوان کا اعتماد اٹھ گیا ایک شخص سے, تو بہتر میں سمجھتا ہوں ایک ویل وشر کے طور پر کہ جام صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے سے فائدہ نہیں ہے. آج 5 مسنگ ہیں, کل اور 5 مسنگ کر لیں گے, شاید یہ کرسی اس کی بچ جائے, لیکن اب یہ ایوان نہیں چلے گا, نہ سلسلہ چلے گا. اخلاقیات کا تقاضا ہے, بلوچستان کی روایت کا تقاضا ہے, اس اگست ہاؤس کی عزت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پہ جام صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اس میں ان کی بھی عزت ہے, ہماری بھی عزت ہے. ہم تاریخ میں یہ چیز لکھوانا نہیں چاہتے کہ ہی واز ریمووڈ فرام سی ایم شپ. میں اتنا ہی کہوں گا. تھینک یو. جی اکبر وینگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری, اپوزیشن لیڈر کو موقع دے. سوری اپوزیشن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں اس امر پہ شدید احتجاج کروں گا اپنی طرف سے بھی اور اپنے متحدہ اپوزیشن کے ارکان کی طرف سے بھی, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ہاؤس کے تقدس کو آپ نے بحال کرنا ہے, آپ نے بچانا ہے. آپ کی موجودگی میں 5 MPs 5 ممبران صوبائی اسمبلی مسنگ ہے, اریسٹ ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں چلے گا اس طرح. تو یہ جتنے بھی
लोग आज खड़े हुए हैं और अपना एक कानूनी, आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी फिर तो अरेस्ट किया जा सकता है, उनको भी मिसिंग पर्सन्स में हिसाब किया जाता है। तो क्या इस तरीके से अगर ये 5 आदमी मिसिंग पर्सन्स हों और इनको यहाँ अपना कानूनी, आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए, तो फिर क्या ये सिलसिला या ये वजीर आला इस तरह चल सकते हैं? ये नामुमकिनात में से है। इसलिए सबसे पहले जब मैं अपनी गुजारिशात शुरू करता हूँ, उससे पहले जनाब से गुजारिश करूंगा कि जनाब ये हुक्म सादिर फरमाएं कि जो लोग मिसिंग हैं, जो एमपीएस मिसिंग है, उनको फौरी तौर पे यहाँ इस हाउस में लाया जाए और उनको रिहा किया जाए। नहीं तो इसके बाद ये होगा कि हम घरों को नहीं जाएंगे जनाब स्पीकर साहब, हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं रोडों को बंद करेंगे जब तक ये लोग नहीं आते हैं, जब तक ये गैर आज़ान खत्म नहीं होता। जी बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जारी है और तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ पेश कर दी गई है। इस वक्त स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने नमाज के दौरान जो है वो तकरीर रोकने का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि 5 अरकान असेंबली जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है नाराज अरकान की जानिब से कि अगर गिरफ्तार अरकान को रिहा नहीं किया गया तो फिर यहीं पर बैठा जाएगा, यहीं पर धरना दिया जाएगा जब तक उनको रिहा नहीं कर दिया जाता है। आपको बताएं कि अब्दुर्रहमान केथरान ने दावा किया है कि हमारे 5 अरकान लापता हैं। ये अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब्दुर्रहमान केथरान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान असेंबली के 5 अरकान जो उनके हामी हैं वो इस वक्त लापता हैं। एक तो अपना असगर खान अचकज़ई साहब आपके काइंड नोटिस में हो कि इसी को आपने पहले भी सपोर्ट किया है, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया। मेरे ख्याल में हम बलूचिस्तान के इलाकों से हम आते हैं, मेरे ख्याल में इतने बुरे नहीं हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कुर्बानी दी है असेंबली के फ्लोर पे बात करने से। जी जनाब स्पीकर, हाउस शुड बी असगर साहब मेरे ख्याल में बैठ के कोई बात नहीं कर सकता है। जी स्पीकर, हाउस शुड बी ऑर्डर। जी मलिक साहब, आपको मौका मिल जाएगा, जिसने जो कुछ बोलना होगा, ये हाउस आप लोगों के लिए, ये इंटरप्ट अब भी ना करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आज जो अदम एतमाद की करारदाद यहाँ पेश हुई है और इसमें जो पहली बात कही गई है कि खराब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोजगारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। होता यह है जनाब स्पीकर साहब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस इंतहाई अहमियत का हामिल मनसब है। इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव के बुनियादी फराइज में जो बातें शामिल हैं वो ये हैं कि वो आवाम के फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखे और फलाह व बहबूद के लिए अपनी अनथक मेहनत करे। दूसरी बात जो उनके फराइज मनसबी में है वो ये है कि वो आवाम की खुशहाली, आसूदगी के लिए अपने तमाम वसाइल को बरूईकार लाए। इसके अलावा इनके फराइज जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उनके फराइज में ये बात भी शामिल है कि वो सूबे के आवाम को ये बावर कराएं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, आपकी तमाम मुश्किलात, आपके तमाम जो मामलात हैं
उनके लिए मैं फ्रंट लाइन पे रहूंगा ताकि आवाम का एतमाद उन पे हो। और जब तक एक चीफ एग्जीक्यूटिव को आवाम का एतमाद नहीं हो तो जाहिर है कि वो अपने ज़मीर में भी जानकर जब देखेगा और आवाम की चीख व पुकार जब सुनेगा तो एहसास तो होगा, लेकिन मनसब प्यारी होने की वजह से शायद वो टस से मस ना हो। जो दूसरी बात है चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज में, चौथी बात जो शामिल है वो ये है कि सरकारी खजाने की इस तरह हिफाजत करेगा जैसे वो सरकारी खजाना अपने असल जगह पे सरदार साहब आवाम की जरूरियात और उनकी तरजीहात पे खर्च हो। जनाब स्पीकर साहब, एक घर में भी अगर 7-8 अफराद रहते हों और उन 7-8 अफराद में से 3-4 को तो तमाम मराहत हासिल हों, खाने पीने की इंतहाई बेहतरीन अशिया हो, पहनने के लिए आला कपड़ा हो और उनके जो भी डिमांड्स हों वो पूरे होते जाएं, लेकिन 3 या 4 को नान शबीना का मोहताज किया जाए, उनसे उनके हुकूक छीने जाएं, उनसे जो उनका हक है या जो उनके जो उनको मिलना चाहिए वो न दे, तो उस घर में या उस 7-8 अफराद के घर में कैसा कोहराम मचेगा और एतमाद फिर इस वालिद है जो भी है बड़ा है जो घर का, उस पे एतमाद कभी भी नहीं होगा और न ही वो घर चल सकेगा और न ही उन लोगों को जिनको चीजें ज्यादा मिल रही हैं उनको भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले चीखेंगे और उनकी जो गोश्त वो खाएंगे वो उनके हलक में अटक जाएगा। तो इसलिए इस बात की जरूरत है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो किसी सूबे का होता है वो सरकारी खजाने की हिफाजत भी करेगा और उसको अपने बेहतरीन मनसब पे खर्च भी करेगा और उसके सामने सिर्फ आवाम की जरूरियात होंगी और उनके जो मसाइल हैं वो उनके सामने होंगे। ये चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी और फराइज में शामिल है। इसके अलावा ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव का फर्ज है कि वो जो सूबे के वसाइल हैं वो आवाम पे खर्च करने के लिए अपने तमाम मंसूबाबंदी करे और जो वसाइल किसी सूबे के हैं उसको उस सूबे के आवाम पे खर्च करने को यकीनी बनाए। इसके अलावा जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज में ये बात भी शामिल है कि वो लूट खसूट, गबन और बदईमानी को मुकम्मल तौर पे बंद कर दे और किसी भी शख्स के साथ जो किसी किस्म के गबन में मुलविस हो, जो किसी किस्म के लूट खसूट में मुलविस हो, जो किसी किस्म के करप्शन में मुलविस हो, उसके साथ कोई रियायत न करे तो आवाम का एतमाद उस चीफ एग्जीक्यूटिव पे बहाल रहता है। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज में ये शामिल है कि वो अराकीन असम्बली अपने हुकूमत के उज़रा, उनके अराकीन और तमाम असम्बली के अराकीन का कानूनी, आईनी और जमहूरी हक उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करे और उसको वो हक दिलवाए। अगर वो हक ब्यूरोक्रेसी की तरफ से गसब किया जाता है या वो हक किसी फर्द की तरफ से गसब किया जाता है
یا معاشرے کے کسی طبقے کی طرف سے وہ غصب کیا جاتا ہے تو یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے جو اس ہاؤس کے اراکین ہیں ان کی عزت، ناموس اور ان کی آئینی اور قانونی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ریکوگنائز بھی کرے اور اس کا تحفظ بھی کرے۔ اس کے علاوہ جناب جو اس وقت کی گورننس کی جہاں تک گورننس کا تعلق ہے، یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بیوروکریسی کو اپنے اختیارات اور حدود کے اندر رہنے کو یقینی بنائے۔ جو بیوروکریسی کے آئینی، قانونی حدود اور اختیارات ہیں ان کو ان کے حد کے اندر رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنائے کہ جو اس سسٹم ہے صوبے کا اس میں کوئی ہارٹ برننگ والی صورتحال پیدا نہ کرے، بددلی اور مایوسی کی کیفیت پیدا نہ کرے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ چیف ایگزیکٹو کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود بھی قانون پہ منوعاً عمل کرنے کو یقینی بنائے، اور پھر یہ جو قانون نافذ ہوتا ہے یا قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہ بلا امتیاز ہو، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر کل مجھے کوئی گزن پہنچاتا ہے یا میری جان و مال کو کوئی خطر پیش آتی ہے یا مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو لا انفورسنگ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، چیف ایگزیکٹو اور ان سے متعلق جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری آواز سنیں گے۔ اس طرح اعتماد عوام کا چیف ایگزیکٹو پہ ہوگا۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ مالی بے ضابطگیوں پہ نظر نہ ہو، بلوچستان کے وسائل جس میں آپ جناب اسپیکر صاحب سیندک ہے، ریکوڈک ہے، گوادر ہے، یہاں کا کرومائٹ ہے، یہاں کا ماربل ہے، یہاں کا کوئلہ ہے، اگر اس کے مینجمنٹ کا ایسا صورتحال نہ بنایا جائے، ایسی صورتحال نہ تشکیل دی جائے جس سے اس کے ان وسائل سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچے اور بلوچستان کے عوام اس فائدے سے محروم ہوں، تو پھر یہ وسائل کے بے جا استعمال اور وسائل کے ختم کو یعنی غیر آئینی طریقے اور غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے والی بات ہوگی، جو چیف ایگزیکٹو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مد نظر رکھے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اعتماد والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بدعنوانی کے مرتکب لوگوں کو فوری سزا دے اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ رہے، تاکہ آئندہ بدعنوانی کے عمل سے لوگ باز آئیں اور عوام کو یہ اعتماد ہو کہ مجھے اب چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر چوری کی گئی تو اس طرح کی سزا ملے گی، سروس جائے گی، دکان جائے گی، جائیداد جائے گی، تو اس طریقے سے پھر وہ اعتماد بحال ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ان فرائض کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جناب اسپیکر، اس وقت
बलूचिस्तान की कैफियत ये है कि बलूचिस्तान में लोग पानी पी के लिए तरस रहे हैं। ट्रैक्टर माफिया हमारे इलाकों में 2000 रुपए का एक ट्रैक्टर फरोख्त करता है और वो भी उस तरीके से फरोख्त करता है जैसे वो हमें खैरात के तौर पे या हम पे एहसान करके वो 2000 रुपए लेके एक ट्रैक्टर पानी देता है। अब जनाब स्पीकर साहब, आप अंदाजा लगाएं कि जिस शख्स की टोटल कमाई पूरे महीने में सिर्फ 15,000 हो और तीन जो उसके अब आपको दरमियान में इंटरप्ट करने तोर साहब प्लीज आप बैठ के बात नहीं करें। सुने, आपको जवाब दें जब जवाब का टाइम आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं जनाब स्पीकर साहब, हमारे इलाकों में एक घर में 5-6 ट्रैक्टर पानी जो कम नफरी वाला घर है उसमें ये खर्च होता है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, अभी इनसे पूछे कि ये किधर मिसिंग था, जरा सा क्लियर कर दे इस पोजीशन को। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असेंबली मलिक सिकंदर इस वक्त इशारे ख्याल कर रहे हैं और कहते हैं कि लापता अरकान को आईनी हक इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। जब तक लापता अरकान नहीं आते हम घर नहीं जाएंगे। दे देते सना बलोच के बाद जमर खान, आपका एक ही नाम आया है आपकी तरफ से, अब्दुल खालिक हजारा और आपका नाम है जी? नहीं है, अब्दुल खालिक हजारा साहब और जमरुख का नाम है। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जारी है। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई है और आपको बताएं कि तहरीके अदम एतमाद अब्दुल रहमान खेतरान ने पेश की और तहरीक का मतन ये था कि वजीर आला जाम कमाल को ओहदे से हटाया जाए और वजह यह है कि ऐवान का वो एतमाद खो चुके हैं। इखलाकियात का तकाजा है कि जाम कमाल खुद ही मुस्ताफी हो जाएं। साथ साथ अब्दुल रहमान खेतरान ने यह भी दावा किया कि हमारे 5 अरकान जो है वो लापता हैं और जिसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असेंबली जो है वो खड़े हुए और मलिक सिकंदर ने कहा कि जब तक लापता अरकान नहीं आते हम घर नहीं जाएंगे। लापता अरकान को आईनी हक इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। स्पीकर लापता अफराद को हाउस में लाएं। वजारत आला इंतहाई अहमियत का हामिल मनसब है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला सूबे के वसाइल को बरोएकार ला रहे हैं। उस टेबल पे जब अपने वुजरा और शुरफा के साथ बैठता था तो शाह ईरान ने, जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल ऑर्डर इन द हाउस आपकी जिम्मेदारी है जी, प्लीज। तो शहंशाह ईरान जब अपने रुफका, वुजरा, शुरफा के साथ बैठ के कहता था तो मैं कहता था कि मैं ईरान में रोज ज्यादतियां करता हूं, किसी न किसी जगह पर लोग मारता हूं। मैंने किरमान में लाखों और हजारों की तादाद में लोगों का खून करवाया। मैंने ईरान की गली कूचों में रोजाना लाशें गिरवाई। मैंने लोगों को भूख और प्यास से भी मारा। लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में मेरे खिलाफ कभी बगावत नहीं की। ये एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ईरान में इतनी बड़ी बगावत शाह अफशाज शहंशाह ईरान के खिलाफ क्यों हुआ? तो क्योंकि शाह ईरान ने अपने पास रुफका और शुरफा इस तरह के रखे थे जो सिर्फ उसकी खुशामद करते थे। अक्सरियत उनमें उन जैसे लोगों का था। उसने कभी भी हकीकत पसंद शख्स अपने इर्द गिर्द रखे नहीं थे। तो एक हकीकत पसंद शख्स था तो उसने शहंशाह ईरान को कहा, जनाब वाला, जब उम्मीद और सब्र हुकूमतें पैसे और दौलत पे कायम नहीं रहती, जाम साहब सुनिएगा, हुकूमतें दौलत पे कायम नहीं रहती, हुकूमतें ताकत पर कायम नहीं रहती, हुकूमतें अक्सरियत और अकलियत पर कायम नहीं रहती। दुनिया में अगर कई हुकूमतें कायम रहती हैं या उनमें तवालत आती है, उनमें इस्तेकाम होता है, तो वो 2 किस्म की रियासतें और हुकूमतें कायम रहती हैं जिनमें एक उम्मीद और सब्र, ये दोनों चीजें मौजूद हों। तो शहंशाह ईरान भी हमारी तरह कम तालीम याफ्ता था या पता नहीं हुक्मरानी के घमंड में सुनता नहीं था जिस तरह भी नहीं सुनते। तो उसने कहा कि ये उम्मीद और सब्र है क्या चीज?
मैं तो लोगों को तेल के पैसे थे, अमेरिका की दौलत थी, मैं रोजाना गोश्त, चावल और बिरयानी खिलाता था अपने सिपाही और फौजियों को। मैंने कौन सी चीज की कमी थी? उसने कहा उम्मीद और सब्र। उसने कहा मुझे जरा बताओ कि उम्मीद और सब्र है क्या? उसने कहा जनाबे वाला, ईरान में लोगों की उम्मीद आपसे खत्म हो गई है। जिस हुकूमत और रियासत में आपके करीब के लोगों की भी उम्मीद आपसे खत्म हो, लोग आपको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह कि बगावतें कब होती हैं? लोग आपके खिलाफ इज्तिमाई तौर पर बगावत कब करते हैं? कहते हैं जब सब्र का पैमाना लबरेज हो। तो उसने कहा कि ये सब्र का पैमाना नापने के लिए कौन सा आला है, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? उसने कहा सब्र का पैमाना जो है वो हुक्मरानों में इनबिल्ट होता है। जो लोग मसनद इक्तिदार पर आते हैं, लोग उनको हक हुक्मरानी देते हैं, उनके फिर दिल बड़े होते हैं, उनके दिमाग बड़े होते हैं, और फिर खुदावंद तबारक ताला उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक सब्र के पैमाना, एक लबरेज होने और ना होने का पैमाना जो है बना देता है। तो जाम साहब, मैं उस चार्जशीट को जो आपके अपने दोस्तों ने आपके खिलाफ पेश किया, मैं उस पर तो बात करूंगा, लेकिन एक बात आपको सोचनी होगी कि जिस तरह के वुज़रा, शुरफा और दोस्त आपके थे, शायद उन्होंने कभी आपको यह मशवरा नहीं दिया कि लोगों की उम्मीद और सब्र के साथ मत खेलें। आपने बलूचिस्तान के गरीब, बेबस, लाचार और मजलूमों की उम्मीद तोड़ के रख दी है। लोगों का बलूचिस्तान से उम्मीद उठ गया है। लोगों की उम्मीद इस रियासत और इस रियासत के इदारों से उठ गया आपकी वजह से। आपने लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया। आपको पता होना चाहिए था कि लोगों के सब्र का पैमाना भी एक दिन लबरेज हो जाएगा, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर आपके इर्द गिर्द मां सिवाय खुशामदियों के एक भी काबिल, लायक और वतन दोस्त, इंसान दोस्त शख्स आपके पास नहीं रहेगा। ये जो अदम एतमाद है, गौराम साहब तकलीफ करके तशरीफ रखें। गौराम साहब प्लीज अपने सीट पे जाएं। जनाबे वाला, 3 सालों में जाम कमाल खान की शख्सी हुक्मरानी, आमराना तर्ज हुकूमत, इदारों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी, बलूचिस्तान के वसाइल को तिफलाना तर्ज पर जाया और गैर पैदावारी मंसूबों पर खर्च करना, जमीनी अकायद के बरखिलाफ, सूबे की माशी बदहाली के अकायद के बरखिलाफ बजट व पीएसडीपी, तिफलाना बजट और पीएसडीपी बनाना, मासूम शहरियों के जान और माल के साथ खेलना, तालीम, रोजगार, सेहत, सफरी सहूलियात और बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करके गरीबुलाल सूबे के वसाइल को स्टेडियम, दुबई एक्सपो और जीप रैलियों में जाया करने वाले हुक्मरानों का अंजाम यही होता है। जनाबे वाला, तहरीक अदम एतमाद दरअसल ये वो चार्जशीट है जो इसके अपने दोस्तों ने पेश किया है। इसकी बहुत तवील है जनाबे वाला। जब उन्होंने अक्के हुक्मरानी संभाला, इसी जगह पर मैं खड़ा था। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद से। सुहेल अहमद, अपडेट कीजिएगा इजलास की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असेंबली का इजलास स्पीकर कदूस जिंजो की सदारत में इस वक्त जारी है। अपोजिशन और जो नाराज अराकीन थे उनकी जानिब से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश कर, जिसमें 33 अराकीन ने उसकी हिमायत की। अभी भी इजलास जारी है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर है मलक सिकंदर एडवोकेट, उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे जो हिमायत याफ्ता 5 अराकीन है उनमें से 4 जो से लापता है, जबकि लाला रशीद जो से वो बीमारी की वजह से ना आ सके और अभी वो असेंबली पहुंच गए। अब भी हमारे 4 अराकीन जो से वो लापता है। जी सुहेल, 40 अरकान की हिमायत का दावा किया जा रहा है जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुखालिफ हैं। सबके सब मौजूद हैं या उनमें से कुछ मिस हैं? जिस तरह है कि इन्होंने दावा किया था, जो नाराज अराकीन और अपोजिशन अराकीन थे उन्होंने 40 अराकीन का दावा किया था। ताहम इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में 33 अराकीन मौजूद है, जबकि बाकी जो उनसे साथ वो मौजूद नहीं है। उन्होंने इल्जाम ये आयद किया है कि जो हमारे 5 अराकीन है जिनमें खवातीन अराकीन भी शामिल है वो मिसिंग है। उनका कहना है कि लापता है। अब से कुछ देर कबल उन 5 में से एक MPA लाला रशीद जो जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है
वो असेंबली पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ और असेंबली पहुंच गया। ताहम अभी भी 4 अभी तक असेंबली नहीं आए और उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो 4 अराकीन है वो अभी तक लापता है। जी अच्छा, 5 अराकीन आप कह रहे हैं अभी तक लापता हैं जो नहीं पहुंचे असेंबली। ये जानना चाहेंगे उनका ताल्लुक किस किस पार्टी से है? क्या अपोजिशन से भी उनका ताल्लुक है और फिर दूसरी तरफ से भी? इस तरह है कि इन 5 अराकीन का ताल्लुक नाराज अराकीन और अपोजिशन जमात से है, जबकि जो 2 खवातीन है उनमें से एक उनकी नाराज अराकीन जो है वो कभी जो ग्रुप से है, जबकि एक खातून लैला हरीन वो अपोजिशन से पीटीआई से उनका ताल्लुक है। सोहेल, अब ये बताइएगा, इस तहरीक अदम एतमाद को अगर कामयाब बनाना है अपोजिशन और नाराज अराकीन ने, तो मजमूई तौर पर कितने लोगों के वोटों की जरूरत है? इस तरह है कि इन्होंने तो 40 का दावा किया। अब से कुछ देर कबल जाम कमाल और अपोजिशन। जी, सोहेल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में। और मुश्किलात जो है उसकी जमींदारी उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने एक दिन भी तकलीफ नहीं किया, किसी 2-4 जमींदार को ही बुला लेते कि उससे पूछ लेते कि मैं आने वाले बलूचिस्तान के वसाइल हैं उन पर कैसा खर्च करूं। आज बलूचिस्तान में जमींदारों के साथ साथ खीरतर कैनाल, पतफीजर कैनाल, गुज़िश्ता साल ये 350 अरब रुपए का नुकसान इस शख्स के सर पर। पटफीजर खीरतर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कौन इसकी जेब से निकालेगा? इवन अगर अदम एतमाद हो भी जाए, हुक्मरान तब्दील भी हो जाए, लेकिन ये जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। चाहे कीर्तर के उस जमींदार से पूछे जिसका माल मवेशी भी मर गया, उस कीर्तर के जमींदार से पूछे जो अपने मुर्दों को धोने के लिए, उनको गुस्ल देने के लिए भी पानी 40-40 किलोमीटर से लाते थे। फिर आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानी क्या। जनाब वाला, मैं आ रहा हूं। कहां है? बिजली की अदम दस्तयाबी पर इस असेंबली में कोई ऐसा इजलास नहीं था जिस पे हमने बात की। जिस सूबे में, जिस मुल्क में 7000 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा होती है, हमने 10 दफा कहा जनाब वाला ये जो चार्जशीट है जिस पे लिखा गया है कि आप बलूचिस्तान का केस नहीं लड़ सके, वो तो यही बातें थी। 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा होती है। एनर्जी डिपार्टमेंट हमने बना लिया, 18वीं तरमीम के पास हमारे पास इख्तियार आ गया। लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये आपकी शख्सी और शहंशाहाना ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊंगा 60 करोड़ का, ये 60 करोड़ अगर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तकरीबन जनाब वाला 50 अरब रुपए बन रहे हैं, इनकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को 10 साल तक गिरवी रख दिया है। जो थ्रो फॉरवर्ड ये अभी लेके आएंगे 107 बिलियन का डेफिसिट बजट लाके, आप अगर ये पैसे डेफिसिट बजट का बिजली पे भी खर्च करते तो हम कहते चलो ये थ्रो फॉरवर्ड किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में है। नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में शौक के लिए आपने बलूचिस्तान के सारे वसाइल का खाना खराब कर दिया। गैस की पैदावार पीपीएल 2016-2015 के बाद से एक मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान का MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2015 और 16 के बाद एक दिन उन्होंने मीटिंग नहीं की। बलूचिस्तान के 56 से 58 अरब रुपए जाया हो गए इनकी इन गलत पॉलिसियों की वजह से। अकले कुल अपने आप को समझते थे, किसी एक जगह बैठ के अगर बलूचिस्तान का ये मसला हल करते, आज बलूचिस्तान में गैस के नए कुएं दरियाफ्त होते। आज सुई में जो है पीपीएल शायद कुछ नए कुएं दरियाफ्त कर लेता और बलूचिस्तान को कम से कम जनाबे वाला 50 से 60 अरब रुपए सालाना जो है मजीद रकम मिलती। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। जनाबे वाला, सीपैक के हवाले से हमने बात की। हमने करारदाद मंजूर की, करारदादों की लिस्ट है मेरे पास। हमने जनाबे वाला उसका चार्जशीट पूरा होने में जिस बुनियाद पे निकाले जा रहे हैं, कम से कम को पता तो चले कि मुझे क्यों निकाला गया है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसलिए मुझसे लोग नाराज है कि मैं उनसे कम मिलता हूं या मैं उनको इज्जत नहीं देता हूं। नहीं जनाबे वाला, इज्जत आप न दें। इज्जत देना वो तो कुछ रिवायत का हिस्सा होता है, अगर किसी ने सीखा हो इज्जत देता है अच्छी बात है, ना भी दे किसी को कोई ज्यादा इससे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर आपकी गलत पॉलिसियों से सूबे को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान सबसे ज्यादा है। मैं आ रहा हूं जनाबे वाला, सीपैक के हवाले से एक मीटिंग वफाकी हुकूमत के साथ अराकीन असेंबली को लेकर नहीं गए। 3 मुसलसल करारदादें यहां पर मंजूर हुई। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना था, यहां पर
फ्री जोन्स बनने थे, यहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। जनाबे वाला खारान में 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इतनी खारान दुश्मनी सना बलोच की वजह से की कि इस दफा शोब में जमीन भी नहीं है। शोब को मिलना चाहिए, लोलाई को मिलना चाहिए, खारान को इसलिए निकाल दिया कि वहां से सना बलोच एमपी हैं और कहते हैं कि जी हमने 3 से 4 अरब रुपए उनको दे दिए। आप बलूचिस्तान दुश्मनी में इस हद तक गए कि आपने बलूचिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाया। सना बलोच की दस्तरखान से रोटी कम नहीं होगा। ये अच्छे हुक्मरान की सोच होती है, उसको अपना ताल्लुक शहरी से बनाता है, एमपीए से नहीं बनाता। आप न शहरी के साथ अपना अच्छा ताल्लुक बना सके, ना आप अपने वज़रा के साथ बना सके, ना आप बलूचिस्तान के अराकीन असेंबली के साथ बना सके। जनाबे वाला मैं आता हूं, एनएफसी अवार्ड, ये गरीब सूबा वाहिद आइन के अंदर जो एक शिक है कि अगर दुकान खसारे में भी हो तो मालिक को खसारे में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि मालिक को फायदा मिलेगा। 3 जनाबे वाला एनएफसी अवार्ड को आज 5वां छठा साल हो गया है, मुसलसल यहां पर करारदादें मंजूर की गई। एक दफा भी आपने ये मसला संजीदगी से नहीं उठाया। सूबे के बड़े दर्द और तकालीफ, जब हमारी दौलत, मैं भी इनको गिनवाऊंगा कि इन्होंने 3,000 साढ़े 3,000 अरब रुपए का नुकसान किया है। ये सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक नहीं, अगर कोई और संजीदा मुल्क होता ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाते उनकी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर। ये तो शरीफ गरीब सूबा है, अदम एतमाद करके निकाल देंगे, जो करना था कर लिया। ये अगर हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती, एहतसाब होता, ऐसे लोगों को यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जाता। जनाबे वाला आज मकुरान अदम एतमाद, सबसे बड़ा अदम एतमाद तो मैं कहता हूं बलूचिस्तान के अवाम का परसों या तरसों हुआ जब उसके घर के सामने 2 मासूम लाशें पड़ी हुई थी मकुरान से, और जनाब वजीर आला साहब जास पकड़ के ग्वादर रैली का इफ्तिताह करने गए। जिस सूबे का हुक्मरान अपने घर के सामने पड़े हुए डीकंपोज लाशों को छोड़कर, ये मुज़ाकरात आपको करने चाहिए थे। ये फैसला बलूचिस्तान हाईकोर्ट में ना होता, ये फैसला बलूचिस्तान की असेंबली करती और आप ऐसे थे वजीर आला करते, मीडिएट करते, एफआईआर करती, मुआवजे मिलते, बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलता। आप जीप रैली में गए, मैं जीप रैलियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस वजीर आला के घर के सामने खुशबूदार लाशें पड़ी हूं, 10-15 दिन से जो लाश निकलती उससे क्या खुशबू ही आएगी। डीकंपोज लाशें पड़ी हूं और वो जहाज लेकर ग्वादर में जाए, सनसेट वाले पार्क में बैठ के कहे कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो? जनाबे वाला, कोरोना जब यहां पर आया, इसी असेंबली में हमने कहा था कि कोरोना से बलूचिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा, तालीम के शोबे में नुकसान होगा। 3 साल में तालीम के शोबे को इस शख्स ने जितना नुकसान दिया है, मैं अल्फिया कहूंगा बलूचिस्तान की तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ है। 3 PhDPs में से 12% भी ये तालीम की मद में खर्च नहीं कर सके। पोलान मेडिकल कॉलेज, खुजदार मेडिकल कॉलेज 2 अरब रुपए में बनना था, आज सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, वो जाके 9 अरब रुपए में पहुंच गया। इसके बावजूद इसका काम उन्होंने जारी करने की इजाजत नहीं दी। यही जुल्म उन्होंने लोलाई के साथ किया। कोरोना में यहां पर जब हमने कहा कमेटी बनाए, 6.5 अरब रुपए में से 14 लाख रुपए की कीलें खरीदी गई, लुड्डो खरीदे गए, हमने वो सारा केस ले आया। यहां पर जनाबे वाला इन मुअज़्ज़िज़ अराकीन की बजाय एक चीफ सेक्रेटरी को कमेटी का सरबराह बना दिया। यह होता है एक वजीर आला, लीडर ऑफ द हाउस का तदब्बुर, उसकी सोच और उसकी जहानत कि आप पार्लियामेंटेरियन को चीफ सेक्रेटरी के नीचे रख के, ताकि कम से कम चीफ सेक्रेटरी आपकी बात माने। क्वेटा प्रोजेक्ट पे कंट्रोल करके आज इसने सरियाब को कब्रिस्तान बना दिया है। कोई भी शख्स वहां से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। क्वेटा प्रोजेक्ट के खरबों रुपए की करप्शन, महकमे सेहत की करप्शन, फिशरीज के महकमे में 1.5 अरब रुपए की करप्शन के केसेस नैब में चल रहे हैं। फाइबर बोट्स बनाने की, ग्वादर के माईगीर, ग्वादर में इतने जलसे और इतने जुलूस हो रहे। मकुरान को तो आपने इंसर्जेंसी वहां पर खत्म करने की बजाय, तहरीक अदम एतमाद एक चार्ज शीट है, 7 करोड़ कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय बिजली लगाते रहे। सनाउल्लाह बलोच का कहना है इनकी गलत पॉलिसीज ने सूबे का हाल बिगाड़ दिया है। बलूचिस्तान असेंबली का इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद अब्दुर्रहमान केथरान ने पेश की और तहरीक का मतन ये था कि वज़ीर आला जाम कमाल को ओहदे से हटाया जाए। केथरान ने इस टाइम कहा कि एक शख्स से ऐवान का एतमाद उठ चुका है, इखलाकियात का तकाजा है कि जाम कमाल मुस्ताफी हो जाएं।